Good morning, class 5 students. In today's class we are going to begin a new chapter, that is chapter number 5, factors and multiples. Okay, we will learn this chapter, understand the concept with the help of notes which we have to write in our notebook. So let's start. Today is 30th July 2020 and this is your classwork, chapter 5, factors and multiples. What is factor? Factor, they divide the numbers completely. Okay, factors are the numbers which divide the number completely. For example, 4 is the factor of 20. How? Because 4 can divide 20 without leaving any remainder, isn't it? 4 5s are 20, so directly it can divide. What are common factors? Common factors are the factors which are common to the given numbers. Suppose we have 8 and 4 and we have to find the common factors of 8 and 4. So first we will find the factors of 8. What are the numbers which can divide 8 completely? 1, 2, 4 and 8. There is no other number which can divide 8 completely. And what are the factors of 4? That means which numbers can divide 4? 1. Surely 1 can divide any number. 2, 4. Any other number? No. So what are the common numbers? I have circled them. They are 1, 2 and 4. They are the common factors. Prime number. What are prime number? Prime numbers are those number which has only 2 factors. How many factors? 2 factors. See, 8 has how many factors? 1, 2, 3, 4. 4 has 1, 2, 3. 3 factors. They both are not prime numbers because they have more than 2 factors. So the numbers like 2, what are the factors of 2? 2 comes in the table of 1 and 2. So they have only 2 factors. What is the factor of 3? 1 and 3. Only these 2 numbers can divide 3. Factors means the numbers which can divide the given number. 5. Which numbers can divide 5? 1 and 5. 7, 1 and 7. So you see all these 4 numbers has only 2 factors which can divide them. They are called prime numbers. These numbers are called prime numbers. Next is composite number. For example, we have taken the example of 8 and 4. They have more than 2 factors. They are called composite numbers. Okay. So it has more than 2 factors. Example 4, 6, 8, 9. They all have more than 2 factors. The numbers which can divide them. They are called composite numbers. Next term is twin primes. What are twin primes? They are the pair of prime numbers. Twin means होता है 2. Okay. Pair means होता है 2. Pair of shoes, pair of socks. इसमें हरदम एक socks पहन के आप नहीं जाओगे, एक shoes पहन के नहीं जाओगे. So pair पहन के जाओगे, right? जोड़ी. So pair of prime numbers having a difference of 2. इसका मतलब है twin primes हरदम 2 numbers ऐसे होते हैं जो prime numbers होंगे. 3 and 5 are prime numbers. 5 and 7 are prime numbers. They have only 2 factors. 11 and 13 are prime numbers. And moreover, their differences. 5 minus 3 is 2. 7 minus 5 is 2. 13 minus 11 is 2. तो ऐसा पेयर जो प्राइम नंबर्स हो प्लस उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 हो, ऐसे पेयर को बोलते हैं ट्विन प्राइम्स. नेक्स्ट टर्म इज को प्राइम नंबर्स. ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? क्या को प्राइम नंबर्स भी सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं? द आंसर इज नो. दे कैन बी एनी नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय एक का. क्योंकि हमने सीखा इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो दैट वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो हर किसी नंबर का फैक्टर है. So co-prime numbers are numbers which do not have any common factor. For example, आपका 3 and 5 है, ये आपके दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. 3 and 5 are prime numbers. And also सारे जो हमारे नोट 1 है, all prime numbers are co-prime to each other. सारे प्राइम नंबर्स एक दूसरे के co-prime होंगे क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका जो डिविजिबल नंबर्स होते हैं वो 1 होता है या तो वही होता है. लाइक फॉर एग्जांपल द फैक्टर ऑफ 3. फैक्टर मतलब जो नंबर डिवाइड कर सकता है 3 को. दैट इज 1 and 3 इटसेल्फ. 5 का कौन सा है फैक्टर? 1 and 5 इटसेल्फ.
7, 1 and 7 and so on. So 3 and 5 आपका prime numbers है, 7, 11, 13 are also prime numbers. All the prime numbers are co-prime to each other. ठीक है, क्योंकि उन सबके फैक्टर एक ही होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 ही होता है. नेक्स्ट इज ऑल co-prime numbers are not प्राइम नंबर्स. सारे जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स मीन्स ये दोनों नंबर के जो अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 1 ही मिलेगा हमें कॉमन फैक्टर, नंबर 1. 11 and 30 का भी हम अगर फैक्टर्स निकालेंगे, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उसमें भी हमें सिर्फ 1 ही मिलेगा. ठीक है, तो सारे अब 14 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 27 इज़ ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. 27 तो 2 फैक्टर्स से ज़्यादा रखता है. जैसे 27 किस किस के टेबल में आता है, 1, 3, 9 एंड 27. सी 27 के बाद 4 फैक्टर्स है, तो क्या ये हमारा प्राइम नंबर होगा? नहीं, ये कॉम्पोजिट नंबर है. 14 के पास भी 1, 2, 7, 14 ये सारे उसके फैक्टर्स हैं, तो इनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स है. दे आर नॉट प्राइम नंबर्स. इसलिए ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. ओके, नाउ मूविंग टू, ये तो फैक्टर्स था, दिस मच वाज फैक्टर्स. मल्टीपल्स. व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स आर जस्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल. दे आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एनी अदर काउंटिंग नंबर. जैसे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, अगर मैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखूंगी, सो मैं 2 1s are 2 2s are 2 3s are 2 4s are 2 5s are लिखूंगी. ठीक है, 2 5s are 10, right? So these are the multiples. Multiples means multiplication table, nothing else. Now another term related to multiples is common multiples. Numbers which are multiples of 2 or more numbers. वो multiples जो 2 से ज़्यादा के multiples हैं. जैसे 3 and 6 के multiples हमने लिखे, 3 1s are 3, 2s are 6, 3s are 9, 4s are 12, 5s are 15, 6s are 18, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 3s are 18, 4s are 24, 5s are 30. ये मैंने टेबल लिखा. नाउ आई हैव सर्कल्ड द कॉमन मल्टीपल्स. 3 का मल्टीपल 6 है, यहाँ पे भी 6 है. 12 3 का मल्टीपल है, 12 6 का भी मल्टीपल है. 18 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 18 इज मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल. सो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स, जो कि 3 and 6 के कॉमन मल्टीपल्स आर 6, 12 and 18, जो दोनों के हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड कॉमन मल्टीपल्स. Now let us move to the exercise which is on page number 55 of your book. I have written today's date 30th July and classwork. Let us do fill in the blanks of exercise 5.1. Dash is the only even prime number. What are the prime numbers? Prime numbers are numbers those who have 2 factors. Only 2 factors. 2 ही नंबर उनको डिवाइड कर सकते हैं, 1 and the number itself. ठीक है, तो सबसे छोटा सब एक लौता इवन आर द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2. लाइक आपका जिनके पीछे यू कैन सी द प्रीवियस पेज क्लियरली मेंशन इवन नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंडिंग विद द डिजिट 0 2 4 6 8. इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जिनके पीछे वाला जो डिजिट है, वंस प्लेस होता है जो, वो 0 2 4 6 8 होता है. Those are even numbers. और अगर कोई और होगा, they are odd numbers. Odd numbers always end with 1 3 5 7 9. उनके जो वंस प्लेस होगा 1 3 5 7 9 होगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, odd numbers. Now so आपका only even prime numbers is 2. 2 is an even number. Yes, 2 is a prime number. Why? Because the factors of 2 are 1 and 2. Number 1 and the number itself. ठीक है, only 2. नंबर बी, 1 इज नीदर अ डैश नॉर अ डैश नंबर. हमने अभी आपको बताया था प्राइम एंड कॉम्पोजिट. मैंने आपको बताया प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. सो ये जो 1 है ना, वो नीदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट है. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए आपके पास कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए. पर अगर 1 को देखोगे, 1 के पास तो एक ही फैक्टर है. 1 किससे डिवाइड हो सकता है? सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है. तो ये ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है. सी पार्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर. इफ यू लुक एट द नंबर्स, 1 इज नीदर प्राइम कॉम्पोजिट. नंबर 2 इवन प्राइम नंबर है. नंबर 3 वो भी प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 1 एंड अपने खुद के. 4 नंबर देखोगे, नंबर 4 के अगर आप फैक्टर्स देखोगे तो वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है. सो इट हैज़ मोर देन
2 फैक्टर्स है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स. सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर? 4 is the smallest composite number. Next part, co-prime numbers have only dash as their common factor. अभी मैंने co-prime numbers के बारे में बताया था. So their only one and only common factor is 1. उनका जो common factor होगा ना सिर्फ 1 ही होगा. अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो co-prime numbers नहीं कहलाए जाते हैं. Second question, I am doing these ticked questions in your copy. Second question AB, third question AB, fourth question all the parts, fifth question A part, sixth question A and D. Rest parts which I have not ticked from question number 2 to 6 are your homework. So do them the way I have done in the classwork. So this is your exercise 5.1. Question number 2. Question number 1 was fill in the blanks to be done in the book only. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एनी 5 फैक्टर्स, मतलब 525 के हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो इसको डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली. सो व्हाट आई डिड इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव लर्न प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको इसको देख के याद आ गया होगा. आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक रफ हैंड साइड कॉलम, राइट 525, ओके, एंड देन एज यू सी द वंस प्लेस इज 5. वंस प्लेस आपका 5 है. 5 के टेबल में वो सारे नंबर आते हैं जिसके वंस प्लेस में 5 या 0 हो. सो वंस प्लेस इज 5, दैट मीन्स it can be divided by the table of 5. So we have written 5 outside. 5 ones are 5. Next number is digit is 2. In the table of 5 2 तो नहीं आता. So we will place 0 and will take 25 as whole. अब 5 के टेबल में 25 कितने बार आता है? 5 5s are 25. Now it is 105. In the table of 5 does 10 comes? Yes. How many times? 5 2s are. So write 5 2s are 10, and how many times 5? 5 1s are 5. Now next number is 21. 21 is not an even number, तो ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा. So try 3 का टेबल. Does 21 comes in the table of 3? Yes. 3 7s are 21. Next is 7. 7 is a prime number. So prime number जो होता है वो उसके फैक्टर ही नहीं होते, तो वो अपने टेबल से ही जाएगा. 7 1s are 7. सो हेयर वी डिड 525 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमारे पास जो भी ये नंबर्स दिख रहे हैं ना आपको 500, ये सारे नंबर्स आर द फैक्टर्स. ठीक है, इसको करने का फ़ायदा, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है कि जो भी नंबर हमारे पास आ जाते हैं वो सारे के सारे 525 को डिवाइड कर सकते हैं. सो कोई से भी आप 5 लिख लीजिए, बिकॉज वी हैव टू राइट 5 फैक्टर्स. सो चूज़ any 5 of your choice and write 5 factors of 525 are, I have written 1 7 21 105 and 525. क्योंकि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं. कौन से? नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सो इसलिए मैंने नंबर 1 और 525 भी लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 848. 5 फैक्टर्स ऑफ 848 कैसे निकाला? सेम वे. 848, look at the ones place, it's an even number. जो भी even number वाले ones place होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं. 2 के टेबल में 8 कितने बार आता है? 2 4s are. In the table of 2 4 comes 2s are. In the table of 2 8 comes 4 times. So मैंने यहाँ पे लिखा 424. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन वंस प्लेस में 4 है, अगेन 2 से डिवाइड करोगे. अगेन आपका यहाँ पे 212 आ रहा है जिसका वंस प्लेस इज 2, तो 2 से डिवाइड करोगे. so, आप अलग से डिवाइड कर सकते हो, बट वो लॉन्ग मेथड है. मैं आपको डायरेक्टली करने सिखा रही हूँ. अगर आपको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो अभी आप, तो आप डिवाइड कर सकते हो. 212 को 2 से डिवाइड करो, आपका 106 आएगा. देन 6 इज एन इवन नंबर. वंस प्लेस हम चेक करेंगे तो वो 2 से डिवाइड होगा. 2 5s are 10, 2 3s are 6. नाउ लुक एट द 53. 53 जो है ना वो आपका प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर मीन्स कि आपका वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा. 53 से ही डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, तो वो 53 आप लिखोगे. 53 1s are 53. एनी नंबर ऑफ योर चॉइस, कोई भी 5 नंबर्स आप निकालो वो आप यहाँ पे लिखोगे. 5 फैक्टर्स ऑफ 848 आर दिस. मैंने लिखा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. मुझे पता है 4th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे योर फेवरेट वाज फैक्टर ट्री मेथड. ओके, सो फर्स्ट राइट 248. सिंस इट इज़ एन इवन नंबर इट कैन बी डिविजिबल बाय 2. सो 2 हमने बाहर लिखा. ये जो सर्कल मैंने किए ना ये बाद में करने हैं, पहले नहीं करने. ठीक है, ये सर्कल वो दिखाते हैं जो प्राइम नंबर्स हैं आपके. तो 2 से डिवाइड करा आपने 248. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. 124 वंस प्लेस देखो
इवन है, अगेन डिवाइड बाई 2, 124 को 2 से डिवाइड करोगे 62 आएगा। कैसे करोगे, 2 डिजिट करो, 2 की टेबल में 12 कितने बार आता है, 2 6 आर, राइट 6। नाउ इन द टेबल ऑफ 2 4 कम्स हाउ मेनी टाइम्स, 2 2s आर, राइट 2। अगेन इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो लास्ट में 31 आया, 31 इज अ प्राइम नंबर, सो इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। एट लास्ट सर्कल करो आप अपने प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 248 आर 2 and 31। अगर आप नंबर्स देखोगे तो सिर्फ 2 and 31 है, बट अगर आप 248 के ये सारे सर्कल्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 248 मिलेगा। सो यू विल राइट 248 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 31, the way the teacher has written. I have done B part as well. Look at this 150. आपने फैक्टर ट्री करा, आप 0 देख रहे हो, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 0 2 4 6 8 जो भी ये सारे डिजिट है वंस प्लेस में आते ही 2 से डिविजिबल होते हैं। सो 2 के टेबल में 15 तो नहीं आता, सो 14 तो आता है ना, तो 2 7s आर 14, 15 माइनस 14 1 होता है, 1 0 10 होता है, 2 के टेबल में 10 होता है 5 टाइम्स, 2 5s आर 10। अब 75 देखो, लुक एट द वंस प्लेस 5 है, पीछे 5 हो या 0 वो सारे के सारे 5 से डिवाइड होते हैं। सो आपने 5 से डिवाइड करा, 5 1s आर 5, आप 75 को यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो। देखो अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हो नो प्रॉब्लम, आप डिवाइड करो राइट हैंड साइड कॉलम, 5 1s आर 5, 7 minus 5 is 2, कैरी डाउन नेक्स्ट डिजिट, 25 बन गया, 5 5s are 25, रिमाइंडर इज 0, right? So what is our question 15? That is why I have written 15. Now look at 15. 15 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, so 5 3s are 15. 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में ही आता है, so we will stop our factor tree method here. Whatever are circle, these all are prime numbers. हमने prime numbers को ही circle करना है और लिखना है different numbers. prime numbers कौन से हैं, जो different numbers हैं, 2 3 5, और 150 किससे बनेगा, ये प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनेगा। सो आई हैव रिटन द प्राइम नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर इज 2 then 3 then 5 then 5, 2 into 3 into 5 into 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड, जो बोला गया है वैसे करो। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 18 विच लाई बिटवीन 15 and 120। मल्टीपल्स ऑफ 18, मैंने यहाँ पे 18 का टेबल लिख दिया है, 18 1s आर से 18 10s आर तक। नाउ I have to find the multiples which are between 50 and 120. Okay, so look at 50 के बीच में कौन सा नंबर है, 50 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 54 आ रहा है, राइट। मोर देन 50 होना चाहिए हमारा मल्टीपल और लेस देन 120 होना चाहिए। 54 मोर देन 50 होता है, मोर देन 72 है, मोर देन 50 है, मोर देन 50 है, मोर देन 108 है, सॉरी। सो 120 से छोटा होना चाहिए। अब हम अगर 126 को भी टिक करते हैं तो क्या वो 120 से छोटा है, नहीं ना। सो इसलिए जो टिक्ड नंबर्स हैं दे आर ओनली द मल्टीपल्स जो हमारे कंडीशंस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। सो वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 18 विच लाई बिटवीन 15 and 120 आर 54, 72, 90 and 108. Okay students, look at the B part. Write the composite numbers between 60 and 70. सबसे पहले तो 60 and 70 के बीच वाले नंबर्स लिखती हूँ। 60 के बाद 61 so on 69, यही सारे नंबर्स हैं जो 60 and 70 के बीच में आते हैं, ठीक है। हमें ना 60 लेना है ना 70 देखना है, उन नंबर्स के बीच वाले नंबर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एम आई राइट? लुक एट 61, क्या लुक एट 61 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में भी आते हैं, तो 61 तो नहीं आता है। 62 यस 2 के टेबल में आता है क्योंकि वो इवन नंबर है, सो इसको हमने टिक करा, ओके टिक इट। 63 यस 3 के टेबल में आता है, देखो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, ये भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि किसी और टेबल में भी आता है। 64 यस सारे जो भी हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं सिवाय एक के जो कि है 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सारे के सारे इवन नंबर्स को टिक कर दूंगी, ये मेरे सारे कॉम्पोजिट नंबर है। बाकी जो टिक नहीं हुए 65, लुक एट 5 इन द वंस प्लेस। मैंने आपको बताया था
कि 5 अगर वंस प्लेस में होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा, जब ये 5 से डिवाइड होगा तो ये कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। 67 किसी से डिवाइड नहीं होता। 69 3 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 23 के टेबल में 69 आएगा, तो ये भी आपका कॉम्पोजिट नंबर बन गया। ठीक है, सो what are the composite numbers? Write down the ticked one. Here the composite numbers between 60 and 70 are 62, 63, 64, 65, 66, 68 और फाइनली लिखने के लिए the final one राइट करने के लिए उसके बाद एंड लगा दो उससे पहले। ठीक है, and 69. C part, write the prime numbers between 20 and 40. So I have written first of all 20 और 40 के बीच में जो भी नंबर आते हैं 21 से लेकर 39 तक मैंने सारे नंबर लिख दिए। Now I will find the prime number. प्राइम नंबर क्या होगा कि वो मुझे पता करने हैं वो नंबर्स जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। सो चलो चेक करते हैं। 21, क्या 21 अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है? यस, 3 के टेबल से डिवाइड होता है ना, 3 7 से 21। सो ये तो आपका कॉम्पोजिट नंबर है, इसको मैं टिक नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ प्राइम नंबर को टिक करना है। 22, ये सारे के सारे जो भी आपके कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स है, ये सारे के सारे आपके कॉम्पोजिट है, तो 22 तो इवन नंबर है, कॉम्पोजिट है, ये मेरे काम का नहीं है। 23 इज अ प्राइम नंबर। 23 किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 23 में आता, तो ये प्राइम नंबर है। 24 इवन नंबर है, कॉम्पोजिट हो गया। 25 5 के टेबल में आता है। 26 इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है। 27 कम्स इन द टेबल ऑफ 9 9 3 is 27, राइट, ये भी आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 28 इवन नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 29 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 और 29 के आता है, ये मेरे काम का है, ये प्राइम नंबर है। 30 इवन नंबर है, डिवाइडेड बाय 2। 31 किसी के टेबल में नहीं आता, इट्स अ प्राइम नंबर। 32 इवन नंबर, तो मतलब कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। 33 3 के टेबल में आता है, 3 1 3, 3 1 3, 11 के टेबल में भी आता है, सो ये भी कॉम्पोजिट नंबर बन गया। 34 इवन नंबर है, तो इसको तो छोड़ ही दो। 35 5 वंस प्लेस में है, ये 5 के टेबल में आएगा। 36 इवन नंबर है, कॉम्पोजिट है। 37 किसी के टेबल में नहीं आता, 37, सो ये भी मेरे काम का है, प्राइम नंबर है। 38 इवन नंबर। 39 3 के टेबल में आता है, 3 1 3, 3 3 9, तो ये टेबल में आता है। 13 के टेबल में भी 39 आता है, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। सो मैंने जो सर्कल करे हैं 23, 29, 31 एंड 37, दे आर प्राइम नंबर्स, जो कि मुझे यहाँ पे लिखना है। सो आई विल राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40 आर, राइट, 23, 29, 31 and 37. Okay students, moving to the next question. Question number 5. Check whether the first number is a factor of the second number or not. फैक्टर पता करने के लिए जिसको भी फैक्टर पता करना है डिवाइड कर दो, क्योंकि 1428 का फैक्टर तभी होगा जब 12 इसको डिवाइड कर देगा विदाउट एनी रिमाइंडर। सो हेयर 1428 को मैंने 12 से डिवाइड करा, यू नो डिवीजन वेरी वेल। डिवाइड करने पर आई गॉट क्वेश्चन 119 एंड रिमाइंडर 0. सो आई हैव रिटन सिंस 1428 divided by 12 is equals to 119 and there is no remainder left, therefore 12 is the factor of 1428. आपके जो रेस्ट पार्ट है, जो आपके होमवर्क है, इफ़ यू फाइंड एनी रिमाइंडर यू विल राइट सिंस डिवीजन गिव्स यू क्वेश्चन एंड देयर इज रिमाइंडर। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर होगा तो आप लिखोगे रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर होगा तो ये आपका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, स्मॉलर नंबर आपका फैक्टर नहीं होगा, तो वहाँ पे नॉट लिखोगे आप। यहाँ पे इस केस में फैक्टर है, इसलिए मैंने इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? वो कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो प्राइम नंबर्स हो, बट उनके जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसके 1 के अलावा है, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। सो हेयर आई हैव फाउंड द फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर्स, ये सारे नंबर 16 को डिवाइड करते हैं। 21 के भी फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे। मैंने देखा कि इन दोनों फैक्टर्स में से 1 ही कॉमन है, इसका मतलब कि 16 एंड 21 को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है ही नहीं। डी पार्ट पर मैंने करा, डी पार्ट आई हैव यूज्ड फैक्टर ट्री मेथड फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स। 46 एंड 108 का मैंने आपको बताया फैक्टर ट्री कैसे बनाना है।
फैक्टर ट्री बनाओ, प्रीवियस क्लास पे आपने बहुत अच्छे से किया था बेटा, ठीक है। तो हमने देखा 46 के क्या फैक्टर्स है, 2 and 23। वट आर द फैक्टर्स ऑफ 108, 2, 2, 3, 3, 3, ये मैंने लिखा। एंड आई हैव चेक्ड, इन दोनों फैक्टर्स में से, इन दोनों के फैक्टर्स में से 2 इज कॉमन, मतलब 1 के अलावा भी एक फैक्टर है जो कि कॉमन है, इसलिए मैंने लिखा सिंस 2 इज द कॉमन फैक्टर 46 एंड 108 आर नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम में सिर्फ 1 ही आपका कॉमन फैक्टर हो सकता है और कोई नहीं, अगर है तो वो को प्राइम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 द सर्कल्ड पार्ट्स। Okay, so do your classwork from the video, pause and write, and then do your homework in the same pattern. Have a nice day, students. Take